গুড মর্নিং, স্যাটারডে লাইভ উইথ সৌম্যর ৭৩তম এপিসোডে সকলকে স্বাগত। আজকে 10ই জুন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছেন। উনি হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য খেমানি। উনি ইউপিএসসি 2021-এ 158 র্যাঙ্ক করেছেন। আমি ওনাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছি ওনার এই সাফল্যের জন্য। এবং আমাদের এই শোতে মিস্টার খেমানি আপনাকে ওয়েলকাম। Thank you so much for inviting me. তো আপনি তো শিলিগুড়ি থেকে বিলং করেন। তো আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে যে ইউপিএসসি যারা যারা পাশ করেছেন তাদের এই প্রোগ্রামে সেই সকলকেই কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে বাকি আরো কয়েকজনকে আমরা এই প্রোগ্রামে আনতে পারবো। তো আজকে আমরা পেয়েছি আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু জিনিস আমরা জেনে নিই। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা WBCS পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের কিছু সুবিধা আশা করি হবে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। তো ফার্স্টে আমি একটু আপনাকে জিজ্ঞেস করব, যদি আপনি আপনার সম্বন্ধে একটু বলেন যে আপনি আপনার এডুকেশনাল কি কি করেছেন, কি পড়াশোনা করেছেন, এবং সর্বোপরি ওয়াই সিভিল সার্ভিস, মানে আইএএস বা আইপিএস বা এইদিকে আপনার ঝোঁকটা কখন থেকে এলো বা কিভাবে এলো, যদি একটু আমাদের দর্শকদের প্রথমে একটু বলেন। আমি স্কুলিং শিলিগুড়ি থেকে ডন বস্কো স্কুল শিলিগুড়ি থেকে 10th এবং 12 করেছি। তারপর আমি কলেজ দিল্লিতে হंसराज কলেজ ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লিতে বিকম অনার্স 3 সাল के लिए किया एंड তারপর আমি সিভিল সার্ভিসের জন্য আমি ঢুকেছিলাম প্রিপারেশন করতে। এটা আমার থার্ড অ্যাটেম্প্ট ছিল। আমাকে সিভিল সার্ভিসেস I was very attracted since my schooling days. I used to participate in lot of quizzing events and वहाँ पे जो जैसे अतिथि लाइक गेस्ट ऑफ ऑनर्स उन लोग मेनली IAS IPS ऑफिसर्स होते थे and they would tell us about the kind of work they used to do and the impact they are making on the people. So I was very much influenced by them, and so since class 11th and 12 I had that dream of preparing for UPSC and being able to get IAS IPS posts. ওকে, সার্ভিস সিলেকশন তো হয়ে গেছে না, মানে কোন সার্ভিসে যাচ্ছেন? না এখনো allotment list আছে নাই, but rank and like past trends feeling আছে যে IPS আমি পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এটা কি ইউপিএসসি 21 বলা হয় না 22 রাদার, না? আমি যেটা প্রথমে বলছিলাম ওটা রাইট। আমি এটা কারেক্ট করে নিচ্ছি, দ্যাট ইজ 2022। ফাইন। তো খুব ভালো লাগলো আপনার এই ঝোঁকটা যে এসছে। তো আমি নেক্সট আই উইল আস্ক ইউ যে আপনি কোনো সার্ভিস করেননি, মানে আফটার গ্রাজুয়েশন অর সামথিং এলস, মানে কোনো সার্ভিস বা কোথাও জব করেননি? No, after graduation, I was working full time. In fact, it was my last day just yesterday. I was working as a senior operations analysis analyst at Standard & Poor's. It's a US-based multinational finance company. Okay. So even during the preparation phase, I was working full time. তো হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ বেসিক্যালি, মানে এত কিছু আপনার সার্ভিস করে প্লাস আপনার ইউপিএসসির জন্য প্রিপারেশন, কি করে ম্যানেজ করতেন? টাইম ম্যানেজমেন্টটা কি করে করতেন? টাইম ম্যানেজমেন্ট একটু ডিফিকাল্ট ছিল। আমার টাইমিং ছিল 6 AM থেকে 3 PM। আমি সিঙ্গাপুর টাইমিং ফলো করতো, তাই জন্য আমাকে ইভিনিং আওয়ার্স একদম ফ্রি ছিল। ইভিনিং पे आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड आई यूज्ड टू आल्सो स्टडी ड्यूरिंग द वीकेंड। सैटरडे संडे 7-8 घंटा আমি फुल टाइम मतलब एकदम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना होता था। अच्छा अच्छा, अभी अगर हम लोग प्रिलिमिनरी के बारे में डिस्कस करें तो प्रिलिमिनरी में जो तो होता है कि 2 पेपर होता है। तो ये सीसेट वाला पेपर आप कैसे प्रिपेयर किए, मतलब जरूरत पड़ा प्रिपेयर करना? क्योंकि आप तो वो स्ट्रॉन्ग जो आपका जो बैकग्राउंड है उसी तो जरूरत नहीं होता है शायद सीसेट में उतना एम्फेसिस देना, है ना? जैसे मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से था तो मेरे को जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ, दैट वाज रिलेटिवली आई हैड दैट बैकग्राउंड। बट कंसिडरिंग कि अभी इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल हो रहा है, आई वुड बी एडवाइजिंग टू ऑल द कैंडिडेट्स टू pursue some at least follow some mock papers for CSAT and study very religiously because CSAT is becoming very tough in the coming years. टफ मतलब जो साइंस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ये आपका जैसे बैकग्राउंड है, उनके लिए भी टफ लग रहा है, ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए ही टफ लग रहा है?
नहीं, लाइक आई वाज टॉकिंग जैसे अपने बाकी लोगों के साथ में, दोज आर फ्रॉम साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे आर आल्सो फाइंडिंग इट टफ। सो इसीलिए आई विल से कि टू बी वेरी मतलब अप टू द मार्क विद मैथ्स एंड इंग्लिश रीजनिंग। टफ क्यों है? मतलब ये अगर जरा हमें बताएं तो व्हाई इट इज यू आर सेइंग दैट इज टफ, मतलब क्वेश्चन क्या हट के आ रहा है, क्या है इसमें? देखिए, अगर सी सेट पे इस बार का पेपर को हम लोग एनालाइज करें तो विल सी कि क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज है दे आर वेरी वेरी क्लोज। मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप थोड़ा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ में मतलब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चंस आर आल्सो गेटिंग वेरी लेंदी। तो 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना विद इन 2 आवर्स, इट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। ये दो रीजंस है कि इट इज बिकमिंग मतलब थोड़ा ये लेंदी एंड। कॉम्पीट करना जरूरी है क्या? क्योंकि पास मार्क्स तो आ ही जाता है मतलब बिना कॉम्पीट करके ही। देखिए, जैसे 80 क्वेश्चंस रहते हैं तो आई विल बी सजेस्टिंग कि टू हैव अ गुड गुड मतलब कवर करना। आई एम नॉट सेइंग कि 80 का 80 करो, बट अच्छा खासा नंबर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। अगर थोड़ा भी आइडिया हो तो आई विल से कि उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता उस क्वेश्चन पे तो इट्स वेरी वाइज टू स्किप इट। अच्छा। अच्छा, प्रिलिमिनरी का जो फर्स्ट पेपर है GS1 पेपर में, उसमें जो सारे सब्जेक्ट रहते हैं, उसका तैयारी आप मतलब कैसे किया जा सकता है शुरू से अगर आप बोले तो? देखिए, ओके, जीएस पेपर के लिए फॉर स्टार्टिंग आई से टू स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। दे आर दी मतलब बेड रॉक फॉर अ प्रिपरेशन। एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 होलिस्टिकली उसको कवर कर लेना चाहिए। अच्छा। इफ यू पिक अप एनी ईयर्स पेपर एंड उसको एनसीईआरटी पे देखे तो यूल फाइंड कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आर सोर्स्ड आउट फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से कवर करना है। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स है, वो सब कवर करो। एंड फिर उसके बाद में जैसे जो ऑनलाइन मॉक पेपर्स रहते हैं उसको सॉल्व करो फॉर गेटिंग दैट फील ऑफ द एग्जामिनेशन एंड डेवलपिंग इंटेलिजेंट गेस वर्क फॉर जीएस पेपर 1। আচ্ছা, মোটামুটি প্রিলিমিনারির জন্য কতদিনের মানে কত মাসের প্রিপারেশন উইল বি সাফিসিয়েন্ট? আমি ভাবেছি যে 5 to 6 months is required for prelims at this stage because prelims has become very difficult in the coming in this year and in the coming years. So dedicating 5 to 6 months is very important for prelims. ওকে, 5 to 6 months। অ্যান্ড প্রিলিমস এর সাথে কি মেইনের প্রিপারেশন করা যেতে পারে, নাকি অনলি ফর প্রিলিমস আগে কমপ্লিট করে দেন উইল গো ফর মেইন एग्जाम? देखिए, व्हाट आई से इज कि मई जून में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। सो एटलीस्ट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स प्रिपेयर सोनली फॉर प्रीलिम्स एंड बिफोर दैट लाइक ड्यूरिंग जनवरी दिसंबर नवंबर मंथ यू कैन प्रिपेयर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। मतलब ओवरलैपिंग करके टू प्रिपेयर बोथ। আচ্ছা, শুরুতে ওটা খালি প্রিলিমিনারি বেসড করাটাই বেটার। नहीं, शुरुआत में मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों प्रिपेयर करो एंड जैसे जैसे अच्छा, प्रीलिम्स से एग्जाम पास में स्टार्ट प्रिपेयरिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स। ओनली फॉर मेंस, ओके। तो दोनों अगर एक साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा? मतलब एनसीईआरटी शुरू में पढ़ना होगा, उसके बाद हाँ, स्टैंडर्ड बुक करना होगा, ऐसा होगा क्या? कोई एक सब्जेक्ट चुन ले, मान लीजिए हिस्ट्री, हिस्ट्री में एनसीईआरटी भी पढ़े, साथ में साथ वो स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ना शुरू किए, वो करा जा सकता है? देखिए, अगर एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को देखें तो दे आर मोर और लेस ओवरलैपिंग फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग डेज अगर प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के साथ में पढ़ रहे एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, सो दैट इज हेल्पफुल एंड दैट इज आल्सो स्मार्ट डिसीजन कि विद इन दैट लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी यू आर एबल टू कवर बोथ। ওকে, ওকে। আমি यस। দর্শকদের বলব, যারা কোয়েশ্চেনস করতে চান মিস্টার খেমানিকে, তাহলে তারা কমেন্ট বক্সে লিখলে আমরা কমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেনসটা এখানে পিক আপ করতে পারি। আম তো কয়েকটা কমেন্ট অলরেডি এসে গেছে। আমরা আস্তে, আস্তে ওগুলোকে নিয়ে নেব। ফর দ্য টাইমিং ডিসকাশনটা একটু জারি রাখছি আমরা। আচ্ছা, আমি জানতে চাইবো মিস্টার খেমানি যে প্রিলিমিনারিতে যে সাবজেক্ট গুলো আছে ওটার কোনো কি মানে আলাদা করে ওয়েটেজ দিয়ে পড়ার দরকার আছে, নাকি মানে কোন সাবজেক্টটা বেশি পড়তে হবে, কোন সাবজেক্টটা কম পড়তে হবে, এমন কোনো ব্যাপার আছে, না ওভারঅল সবকটা দিয়ে একটা ব্যালেন্সড ওয়েতে এমফাসিস বা জোরটা দিতে হবে? देखिए, प्रीलिम्स एकदम अनप्रेडिक्टेबल है तो आई से कि सबको को इक्वल इंपॉर्टेंस दे करके पढ़े बिकॉज ऐसा हो सकता है इस एक साल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आ गया एंड नेक्स्ट ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ गया। तो इसलिए गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक इज रिक्वायर्ड। और करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है? जो पैटर्न चल रहा है अभी यूपीएससी में, कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस को एनालाइज करने से यूल सी कि पास्ट 24 मंथ्स तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो एटलीस्ट गेटिंग एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द पास्ट 24 मंथ्स वाया न्यूज़पेपर्स एंड मंथली कंपाइलेशंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा देख रहा था उस दिन कि ये जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन आप बता रहे हैं, जिसका ज़िक्र कर रहे हैं आप, उसमें जो है ना, वो एक एक्सपर्ट लेवल का नोट है। लेकिन जो नॉर्मली जो यूपीएससी में जो बोला जाता है कि एक जनरल स्टैंडर्ड ग्रेजुएट का जो कैपेसिटी होना चाहिए, उसके हिसाब से आप पढ़िए। तो वो एक्सपर्ट लेवल आपको पढ़ना ज़रूरी है क्या? खुद अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उन कोचिंग का जो आप बोल रहे थे कि उसका हेल्प लेके बनाना चाहिए अपना नोट खुद का? देखिए, जो मंथली कंपाइलेशन रहते हैं उस पे एक्सपर्ट लेवल डिस्कशंस रहते ही है। व्हाट अ कैंडिडेट नीड्स टू डू इज टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दोज थिंग्स एंड गेट दैट ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन एंड आइडिया अबाउट इट, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दीज। अच्छा, वो अगर डेप्थ में है तो वो भी पढ़ना जरूरी होता है ना, यूपीएससी के लिए? डेप्थ में पढ़ना एंड गेटिंग दैट ओवरऑल आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंशन की इसके बारे में, कि यू गेट दैट रफ आइडिया कि ये क्या चीज है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा। इसमें कि कोई ये है कि नेशनल इंटरनेशनल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स कम है, या इकोनॉमी का न्यूज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? सारे चीजों सही तरीके से पढ़ना है? आई से कि सब कुछ को अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2020 में, नहीं 2021 में देयर वर टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स ओलंपिक्स एंड आई थिंक एक स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड के बारे में क्वेश्चन आया था। फिर 2022 पे कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, बट देन 2023 दिस ईयर्स प्रीलिम्स में फिर से दो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सो वी कैन नॉट बी कुछ एनालाइज नहीं कर सकते गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी टॉपिक, दैट वुड बी अ वेरी सेफ एंड गुड स्ट्रेटेजी टू फॉलो फॉर प्रीलिम्स। और एक चीज है, ये जब पढ़ना शुरू किया कोई बंदा ने, उसको क्या नोट बनाना चाहिए साथ ही साथ पढ़ने के साथ, या सिर्फ मतलब किताब से ही पढ़ना पड़ेगा? देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे लाइक वी वर टॉकिंग फ्यू मोमेंट्स अगो रिगार्डिंग मंथली कंपाइलेशंस, दे आर वेरी ब्रॉड एंड मतलब काफी डेप्थ में, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के रफ मतलब कंपाइलेशन बना के नोट्स, सो दैट एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स एंड कीप ऑल योर रिविजन पॉइंट्स एंड इन योर फिंगर टिप्स। इसलिए नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब नोट माइंड मैप टाइप का होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, मतलब किस तरीके से नोट बनाना है आप जो जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरे नोट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहते थे, अगर किसी को पॉइंट वाइज मतलब रफ में चाहिए तो ही कैन मेक दैट। ओवरऑल ये पर्सन पे डिपेंड करता है, हाउ इट्स हिज स्ट्रैटेजी इज, हाउ दैट पर्सनस माइंडसेट इज, उसके ऊपर में ही हैज दैट लिबर्टी कि किस टाइप का नोट्स बनाना चाहिए। साथ ही साथ व्यूअर्स का क्वेश्चंस भी आ रहा है, हम एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। मिस्टर अलिक कुमार हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट सर व्हाट वाज द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ चैतन्य खेमानी सर? आपका ऑप्शनल वैसे कैसे कौन सा था? My optional was commerce and accountancy. I had chosen that subject because I come from finance background. I was working in a finance company, so I had those current affairs and overall happenings of the world market in my fingertips. इसलिए I chose that. ओके। और एक क्वेश्चन आया है स्नेहली मिश्रो से, सर व्हाट वाज द ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए? मैं इसमें ऐड करूंगा कि मतलब कब से पढ़ना चाहिए? आपने बोला कि 8 to 10 मंथ से शुरू से, मतलब एनसीईआरटी शुरू करे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स ले ले, लेकिन ऑप्शनल कहाँ पे घुसेगा? वो कितना टाइम बाकी रहने से आप ऑप्शनल शुरू कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, देखिए, ऑप्शनल स्ट्रैटेजिकली डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन विच ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एंड उस पे कितना लार्ज सब्जेक्ट सिलेबस है एंड कितना उसके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। फॉर मी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज था, सो आई वाज एबल टू प्रिपेयर लाइक अराउंड मेंस के टाइम पे आई हैड given full hardcore preparation for optional subject, and before prelims थोड़ा बहुत मतलब overall I was practicing for commerce and accountancy. So it completely depends कि आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कितना एक्सपोजर है, कितना आपके पास में नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग बेस है। अच्छा। तो आपके हिसाब से, मतलब आपका जैसे उसमें एक्सपर्टाइज था, उसमें कितना टाइम लगा एग्जैक्टली? मतलब 2-3 कितना टाइम लगा एक्चुअली?
देखिए पेपर वन के लिए जैसे इट्स अ टेक्निकल पेपर एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहता है पेपर वन, तो उसके लिए आई टुक अराउंड 400 आवर्स, मतलब 400 आवर्स मेरे को लगा कंप्लीट करने में। एंड पेपर टू इट्स मैनेजमेंट बेस्ड सब्जेक्ट एंड मतलब थ्योरी बेस्ड है, तो उसके लिए अराउंड 300 आवर्स लगा, तो कंप्लीट 700 आवर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। इट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, 700 आवर्स डिवोट करना। मतलब ये प्रीलिम्स से पहले या प्रीलिम्स और मेन मिला के टोटल टाइम जो प्रीलिम्स अब एंड जो मेंस खत्म? मिला के टोटल सब्जेक्ट, मतलब मेरे कॉमर्स अकाउंटेंसी के 700 आवर्स बोथ पेपर्स के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। Okay, okay, fine. Next, we come to the main exam. We'll focus on that two particular papers which we don't have in the West Bengal Civil Services. Maybe अभी इंट्रोड्यूस होने भी जा रहा है वो ऐसे पेपर जो है। तो ऐसे के लिए क्या कैसे प्रिपेयर किए थे आप, और कोई सजेस्टिव कुछ था क्या? थोड़ा अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें हम लोगों को तो। ठीक है, अगर ऐसे पेपर का हम लोग देखें तो मोर ज्यादा ज्यादा करके इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स फिलोसफिकल एसेस। तो इसके ओके। लिए गेटिंग ओवरऑल, मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स दैट यू प्रिपेयर फॉर जीएस, उस पे आपको फॉर्डर मिल जाएगा। उसके अलावा रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स ओवरऑल, जैसे बिकॉज अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर, तो इसलिए जस्ट रीडिंग गुड बुक्स अपने फ्री टाइम पे। थर्ड, प्रिपेयरिंग मतलब लिस्ट ऑफ पॉसिबल कोटेशंस, फैक्ट्स, फिगर्स थोड़ा बहुत। दीज हेल्प्स इन preparing फॉर essay, because of writing 1500 words in उसके आपको fodder चाहिए होता है, and you get those fodders from those topics for essay. And of course continuous practice is important, getting your answer essays evaluated by your peers जो past में prepare कर चुके हैं, उनको उनसे आप review करवाओ, and then working upon those flaws and क्या बोलते हैं opinions, उस पे work करके improving your essays. फाइन। अच्छा, और एक बात है, ये ऐसे तो मतलब करंट अफेयर्स रिलेटेड ऐसे भी हो सकता है, फिलोसॉफिकल भी वैसे टाइप का भी हो सकता है, दोनों मिला के भी हो सकता है। तो कोई सजेशन टाइप का कोई ऐसा हो सकता है कि मतलब 50 या 60 या 100 ऐसे बेहतर प्रिपेयर करके जाएं, उधर वहां से कॉमन आ जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, सभी वहां पे जाके लिखना पड़ता है, ऐसे टाइप का है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। देखिए लक के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप 2 एसेस पढ़ के जाएँ दोनों आ जाए, या फिर आप 50-60 पढ़ के जाओ उससे 50-60 में से कुछ भी नहीं आए। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, लक के ऊपर में भी एक काफ़ी फैक्टर रहता है। बट ओवरऑल मतलब जितना प्रिपेयर कर सके उतना ही बेटर होता है देखिए एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, और एक पेपर है जो है एथिक्स का जो पेपर है। एथिक्स का हाँ। पेपर तो वो तो मुझे तो लगता है थोड़ा-सा इनबॉर्न है ही है, जो एथिक्स का जो वैल्यूज़ है, इंटरेस्ट है, और उसके साथ थोड़ा प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो ये कैसे आप मैनेज किए थे? अच्छा, जैसे दिस वाज माय सेकंड मेंस, उससे पहले आई हैड गॉट 101 एंड इस बार मेरे को 120 आया मेरे जो ऐसे पेपर में। सो व्हाट स्ट्रेटजी आई फॉलोड वाज टू टेक अ स्टैंडर्ड बुक। आई टुक लेक्सिकन एथिक्स के लिए, उस पे जितना भी मतलब टॉपिक्स से सब रहता है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड फिर काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स हुआ फ्रॉम इन एंड अराउंड दी वर्ल्ड, अच्छे अच्छे लाइक पीपल हु हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ एथिक्स, गुड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जिन्होंने इम्पैक्ट मेक किया, तो उससे काफी एनरिच करना अपना आंसर्स एग्जांपल्स दे करके। एंड कमिंग टू द केस स्टडीज पोर्शन फॉर जनरल स्टडीज 4, उस पे मतलब अच्छे से मतलब वर्क अपॉन करना, टेकिंग केस स्टडीज अपने घर पे प्रैक्टिस करना, तो फ्रॉम दैट वे वी आर एबल टू हैंडल दिस पेपर। एंड GS4 इज अ वेरी वेरी लेंथी पेपर नाउ डेज, क्वेश्चन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के आते हैं, तो उसके मतलब स्पीड राइटिंग करना, इंटेलिजेंटली मतलब क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ के समझ पाना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। अच्छा। इसमें मैं 2 और भी क्वेश्चन आया हुआ है सीसैट लेके, मैं इस रखता हूँ स्क्रीन पर। संदीप पूछ रहे हैं कि सर व्हाट आर द बेस्ट स्कोर्स फॉर बेस्ट सोर्सेस फॉर इंप्रूविंग सीसैट? और इसके साथ और फर्स्ट भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ले लेता हूँ साथ में। प्लीज सीसैट स्ट्रेटेजी नहीं है उना के अरेक बार जिज्ञेस करो आप बोले हैं, फिर भी बस अब सोर्स थोड़ा अगर बता दे पहले। ठीक है। देखिए सी सेट के लिए काफी मतलब आई थिंक RS अग्रवाल बोल के एक मैथ्स MBA प्रिपरेशन का बुक आता है, वी कैन पिक दैट अप। और भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनका MBA लेवल क्वेश्चंस आते हैं, तो वी कैन प्रिपेयर दैट। उस पे एक जो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है यू कैन इग्नोर दैट, बट बेसिक वहां से कवर किया जा सकता है अच्छा। फॉर सी ये सेट। बोलिए।
एंड उस पे जितने भी क्वेश्चंस हो उस पे वर्क अपॉन करना, फॉर्मूलाज हुआ, कुछ हैक्स होते हैं कि दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ 5, 7, 13, 11, 17, राइट। 19, दीज आर इम्पोर्टेंट नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स हुआ, ये सबका लिस्ट पहले से प्रिपेयर करके अपना जाना चाहिए सी सेट के लिए। अच्छा। और सीसेट का अब जो स्टैंडर्ड है, अब तो तब बोल रहे थे कि थोड़ा-सा टफ होते जा रहा है। तो ये क्या ये कैट लेवल का किताब या ऐसे कुछ पढ़ना भी चाहिए क्या? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज इस बार का जैसा जो सी सैट पेपर आया एंड आई थिंक इट्स अ बिग एलिमिनेटर, तो बेटर टू बी सेफ देन बी सॉरी। सो इट्स ऑलवेज वाइज कि प्रिपेयर कर लेना चाहिए हाई लेवल क्वेश्चंस को भी। अच्छा, अच्छा। So, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जब मान लीजिए जीएस 1 जीएस 2 ये जो सारे पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो सारे हैं, इसमें अगर थोड़ा सा बता दे तो कैसे प्रिपेयर करना है और इसका क्या सोर्सेस हो सकता है, पॉसिबल सोर्सेस। शुरू हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, GS1 का हम लोग टॉपिक्स पे जाते हैं। एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, उसके लिए एनसीईआरटीज आर गुड। स्पेक्ट्रम इज आल्सो गुड, आई फॉलोड दैट बुक एंड ये तो इज सफिशिएंट। कमिंग टू ज्योग्राफी पोर्शन, GC Leong is there, then monthly compilations are there, उसको प्रिपेयर करना चाहिए। सोसाइटी के लिए भी देयर आर वेरियस नोट्स दैट आर अवेलेबल ओवर टेलीग्राम ऑन द इंटरनेट, उसी को करना चाहिए। GS1 के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वी ड्रॉ लॉट ऑफ डायग्राम्स, वी ड्रॉ लॉट ऑफ मैप्स टू मेक अ पेपर वेरी इंटरेक्टिव फॉर द एग्जामिनर एंड द पेपर चेकर। सो ये GS1 के लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। Coming to GS2, it is international relations and polity. Polity के लिए लक्ष्मीकांत is a very good book and monthly compilations हुआ। फिर में विजन आईएएस का मेंस 365 रहता है, आई फॉलोड दैट, इट इज आल्सो गुड। एंड आल्सो क्या नाम है, इंटरनेशनल रिलेशंस के भी मतलब करंट अफेयर्स ये सब फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट। इस पेपर में ये इंपॉर्टेंट है कि यू गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, केस स्टडीज, ये सब देने से काफी हेल्पफुल रहता है। Coming to GS3, it is environment. Then we have got science and technology, economics, internal security, disaster management. तो इसके लिए भी various sources available है, जैसे शंकर आईएएस के environment books हुआ, और economics के लिए भी, like I come from commerce accountancy background, so it was relatively easy for me. तो ये सब चीज को प्रिपेयर करके इसमें भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू आर गिविंग वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स। तो इन दैट वे यू कैन फेच गुड मार्क्स फॉर दिस पेपर। अच्छा, तो इसमें जो आप जो बोले हैं, जो जो नाम लिए हैं वो किताब का, जैसे मान लीजिए जीएस का जो 1 का जो बोले हैं कि नॉर्मल जो एनसीईआरटीज़ हैं उसके साथ स्पेक्ट्रम का जो राजीव आहिर का मॉडर्न इंडिया शायद आप बोले हैं। तो बाकी तो और भी बहुत सारे किताब हम बाज़ार में देखते हैं कि मिलता है, काफ़ी बोलते भी हैं सारे। तो वो सब किताब क्या एकदम बिना टच किए एनसीईआरटी और इसमें हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड स्कोर आ जाता है? जस्ट आई एम माने एंश्योरिंग इट। देखिए, मेरे पास में जैसे लिमिटेड टाइम रहता था, बिकॉज आई वाज वर्किंग फुल टाइम, तो फॉर मी इट वाज वेरी ओके। इंपॉर्टेंट टू कीप माय सोर्सेज लिमिटेड। जितना भी पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है। बट इफ समबडी इज हैविंग प्रेफरेंसेस फॉर सम अदर बुक, देन ही कैन गो डेफिनेटली फॉर दोज बुक व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। नहीं, मेरा ये कहना था कि मान लीजिए एक-एक सब्जेक्ट का 2-3 किताब सब पढ़ते हैं, तो इसका ही मतलब एक किताब में स्टिक करना चाहिए, ये 2-3-4 किताब जैसे-जैसे हो सकता है, वैसा भी मतलब तैयारी किया जा सकता है। जस्ट यही। देखिए हाँ, देखिए ये जो है बुक्स तो अनलिमिटेड है मार्केट में, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड जितना भी सोर्स से परस्यू कर रहा है उसी को ही अच्छे से मतलब करना, उस पर एटलीस्ट 2 बार 3 बार रिवीजन करके ही मतलब संतुष्टि आना चाहिए किसी को भी। अच्छा, ये रिटेन करना, ये पढ़ तो लेते हैं हम लोग लेकिन रिटेन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रहता है। इसके लिए आप कैसे रिविज़न करते थे या रिटेन करने का क्या प्लान था आपका? हाँ, अच्छा, ये रिटेन करना इज डिफिकल्ट डेफिनेटली, एंड 3 घंटा में जब लिख रहा होता है टू गेट दोज पॉइंट्स इन द पेपर, दैट इज बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए नोट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट। अपने खुद के हैंड राइटिंग में जब लिखा हुआ रहता है उसको कंटिन्यूअसली पढ़ना और उसको मतलब कंपाइल करते जाना, छोटा छोटा छोटा, विद कंटिन्यूअस रिविजन्स, कंटिन्यूअस नोट मेकिंग। जितना मतलब अपना शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड क्रिस्प कर ले अपना नोट्स, उससे से रिटेंशन हो पाता है।
अच्छा। लास्ट में अगर इंटरव्यू के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू के टाइम में आप कैसे आपको प्रिपेयर किए थे? और आप कितने बार इंटरव्यू आप दे चुके हैं? आप इस ये तो आपका 3rd अटेम्प्ट था, आप बोले हैं पहले शुरू में। तो हुँ। इंटरव्यू आप कितने बार दे चुके हैं? ये मेरा फर्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, ओके। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट? अच्छा। देखिए इंटरव्यू का 2 यू कैन डिवाइड इट, वन इज योर डाफ दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेकंड इज योर करंट अफेयर्स। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज बेसिकली लाइक द ओपन क्वेश्चनर दैट यू हैव, जिससे अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो। एक एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड इन योर डाफ इज इम्पोर्टेंट, तो एक एक वर्ड को पिकअप करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, एटलीस्ट 3 levels of questions जो है you can stem out from your DAF for each and every keyword, उतना प्रिपेयर कर लो। कमिंग टू करंट अफेयर्स, लेयर के बाद अगर थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दें, लेयर मतलब क्या होता है? मतलब डिफिकल्टी ठीक है, हाँ। या डेप्थ में बोल रहे हैं आप? ठीक है, देखिए इंटरव्यू कैसा चलता है, लाइक द इंटरव्यू विल आस्क यू, ओ योर नेम इज चैतन्य, सो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैतन्य। So this becomes your first layer. अब फिर I'll say that Chaitanya was a very famous Bengali saint. He started the Hare Krishna Hare Rama cult and popularized bhakti movement in West in Bengal. So then the second layer becomes, okay, tell me what was the bhakti movement. So then I'll tell him about the bhakti movement. What was it? Then I'll say that, okay, so like we had Mirabai in Rajasthan, and then we had Sant Gyaneshwar in Maharashtra. Then the third layer can be, okay, so tell me about Sant Gyaneshwar. Which god did he popularize? Where is his main shrine? This becomes the third layer. अब ये जो चैतन्य से start करके we reached out to Gyaneshwar of Maharashtra. So these are the third layers. It's at least 3-4 layer तक you need to prepare the questions. ओके, So ओके। this is regarding layers of questions. So each word पे at least 3 layers of questions you need to prepare. Then coming to current affairs, you should read 2 normal newspapers like Hindu, Indian Express, and third can be any business newspaper, because economics is a very important part during personality test. What is happening in the global, international markets and international financial scenario, it becomes very important during interview. तो ये जो तीनों न्यूज़पेपर अब हैं, वो बोल रहे हैं, वो क्या मेन का रिज़ल्ट के बाद पढ़ना शुरू किया जा सकता है या और भी पहले से शुरू करना चाहिए? देखिए जैसे न्यूज़पेपर, एक भी यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस एस्पिरेंट हो, उसको आई थिंक न्यूज़पेपर तो हमेशा ही पढ़ना पड़ता है, जी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट और नॉट। सो यू कैन कंटिन्यू, बट वंस द मेन रिजल्ट आर आउट एंड यू नो कि ये मेरा इंटरव्यू डेट है, तो एटलीस्ट 14 days बिफोर योर एक्चुअल इंटरव्यू, उस समय का न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर माई इंटरव्यू, द क्वेश्चंस केम फ्रॉम द सेम डे न्यूज़पेपर, बिकॉज आई हैड इट इन द आफ्टरनून सेशन। तो मॉर्निंग में आई हैड read that day's newspaper and उसी से क्वेश्चंस आया था मेरे पास में। ओके, ओके। और जो एस्पेक्ट्स हैं इंटरव्यू के, और जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, अपना खुद का जो ग्रूमिंग्स है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया, और भी सारी चीज़ें हैं, ये तो तब वो सब चीज़ को आप कैसे प्रिपेयर किए किए थे? देखिए ये सब के लिए मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, काफी इंस्टीट्यूट्स के आते हैं, तो वो सब मॉक इंटरव्यूज को अटेंड करना चाहिए, उस पर अपना रेस्पॉन्स देखना चाहिए। मॉक इंटरव्यू पैनल्स के जो ओपिनियन होता है उसको क्रिटिकली लेकर के इवेलुएट करना चाहिए अपना परफॉर्मेंस, एंड उस पर मतलब वर्क अपॉन करते हुए ही चलना चाहिए। एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको स्क्रीन में डालता हूँ। शिवांशा शाह, व्हाट वाज़ द मोस्ट ट्रिकी सब्जेक्ट यू फेस्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? Okay. So the most difficult and the most tricky question part I would say would be prelims preparation, because questions come very very close and 50-50 four options रहता है, उसमें से दो 50-50, like you can eliminate 2 options like A B C D में से C और D हटा दिया, but choosing between A and B, that becomes a matter of luck also at times. So that was the most tricky part that I faced. ओके, तो उसको यहाँ पे भी सब सब जगह वही होता है कि 2 तो एलिमिनेट हो ही जाता है, लेकिन बाकी 2 रह जाते हैं, दो उसमें को से एक हाँ चूज़ करना पड़ता है। हाँ तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं सर 2 तो आ गया, 2 में तो आ गया, लेकिन बाकी 2 में से अगर कोई करता हूँ तो ज़्यादा गलत ही हो रहा है अब मेरे साथ, है ना? हाँ
तो देखिए, एक तो ये कि इंटेलिजेंट गेस वर्क को हम लोग को डेवलप करना पड़ता है, एंड सेकंड इज दैट समटाइम्स वी नीड टू डू थिंग्स विद होप एंड एज अ मैटर ऑफ फेथ आल्सो, सो दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो ये चीज होता है। अब ये ट्रेंड चल रहा है ना कि मान लीजिए कि आफ्टर 12 जब ग्रेजुएशन कोई शुरू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन पढ़ना शुरू किया ग्रेजुएशन में, तो तभी से यूपीएससी का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा शुरू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, स्टार्ट किया कर रहे हैं सब। तो अगर कोई मतलब 12 प्लस इस स्टेज से शुरू करना चाहते हैं, तो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या शुरू करना पड़ेगा? न्यूज़पेपर हो सकता है, चाहे कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका क्या सजेशन है? See, I'll suggest to these kids would be to prepare for newspaper only. देखिए, newspaper पढ़ने से you get overall happenings in the world and you become a brighter and a sharper candidate. So maybe if you अगर बाद में यूपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस पे इंटरेस्ट नहीं रहता और कोई एग्जाम्स के लिए इंटरेस्ट रहता है, तो having read that newspaper will always prove to be a beneficial point, and it will give you a competitive edge compared to other aspirants or other candidates. So I'll suggest start reading newspaper. और शुरू में आप बोले थे कि एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, तो एनसीईआरटी क्या बाद में, मतलब इस ये पैरेलली ग्रेजुएशन के साथ साथ चल सकता है क्या एनसीईआरटी? नहीं, वो याद नहीं रहेगा बाद में, ऐसा ऐसी बात है? नहीं, ऐसा बात नहीं रहता। इफ अ पर्सन इज 100% श्योर कि मेरे को यूपीएससी डब्ल्यूबीसीएस देना है, तो ही कैन स्टार्ट एट एनी फेज इफ ही वांट्स, दैट इज देयर ऑफ कोर्स। एंड एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एनसीईआरटी कर लो, स्लोली स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग अप योर पेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। बस ये इम्पोर्टेंट है कि एज द एग्जाम स्टार्ट्स कमिंग यू डोंट गेट बर्नड आउट, मतलब कि वो सेम चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो जाना, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज परस्यू हॉबीज, बी मतलब सोशली अवेयर, मतलब दोस्तों से मिलना, परस्यूइंग योर हॉबीज, ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू जस्ट डोंट गेट मतलब बोर्ड विद खाली पढ़ाई पढ़ाई से, क्योंकि एग्जाम काफी लेंथी प्रिपरेशन रहता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और एक बात है, आप बोल रहे थे कि एनसीईआरटी क्लास 10 टू 6 टू 10 पढ़ने के लिए, 11 12 का जरूरी नहीं होता है एनसीईआरटी का? देखिए, 11-12 में ना थोड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाता है सब्जेक्ट्स में, बट फ्यू आर इम्पोर्टेंट। जैसे आई थिंक बायोलॉजी में लास्ट के चैप्टर्स दोज आर बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री का 11th एंड 12th दैट इज इम्पोर्टेंट, ये सब चीज रहता है। तो 11-12 में सेलेक्टिव रीडिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट, टू नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। अच्छा। और एक चीज, आप थोड़ी देर पहले हॉबी के बारे में जिक्र कर रहे थे। हॉबीज जो है ना, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम देखे हैं कि कोई पर्टिकुलर हॉबी है ही नहीं। हालांकि क्रिकेट, फुटबॉल, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सारे तो होता ही रहता है, लेकिन हॉबी टाइप का कुछ होता नहीं है। तो इस हॉबी रखना क्या जरूरी होता है इंटरव्यू में? अगर किसी का ऐसे कोई फिक्स हॉबी है नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, ये चीज आई हैड रेज्ड द टॉपिक ऑफ हॉबी पर्पसली, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान भी डैफ में एक हॉबी बोल के एक अलग से सेक्शन रहता है फॉर द कैंडिडेट्स हु डोंट नो अबाउट दिस, एंड हॉबी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग योर पर्सनालिटी टेस्ट। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ओनली स्टार्ट डेवलपिंग some kind of hobby, like I developed kitchen gardening and learning foreign language. I learned German. So these two helped me during the preparation, and interviewers, they were also very impressed कि इसको एक foreign language आता है, so that helped. So to all the candidates I would say, you have got adequate time, start developing certain hobbies, like even listening to music अगर आपका hobby है, तो उसके अंदर में जाओ, get into the depth, get to know कि क्या क्या questions होते हैं, क्या क्या questions आ सकते हैं उसके बारे में, काफी डिटेल में start knowing your hobby. तो ये जो जर्मन लैंग्वेज आप सीख रहे थे, ये क्या अपने आप खुद ही सीख रहे थे ऑनलाइन, या किसी से हेल्प लेके? नहीं नहीं, आई वाज लर्निंग प्रोफेशनली, मैंने सीखा 2 साल, तो अच्छा। हाँ, तो so start becoming intelligent कि what can impress your the interviewer panel की and sets you apart from other candidates, so that becomes very important। and तो आपके पास में all the candidates, they have time, start developing certain hobby and getting to know it very nicely। अच्छा। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा साथ ही साथ कि ये आप कभी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम में बैठे थे? हाँ, मैं बैठा था, बट आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, तो आई लेफ्ट, देन फिर यूपीएससी में 100% आ गया था। कौन से साल में?
आई थिंक इट वाज 2019 एंड 2022, 2 साल के लिए मैं बैठा था, बट प्रीलिम्स में आउट हो गया तो इसीलिए। आपको क्या डिफरेंस क्या लगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डब्ल्यूबीसीएस में प्रीलिम्स नहीं हो पाया, लेकिन यूपीएससी में एकदम सारे क्लियर होके एकदम अच्छे रैंक आ गया। हाँ, I think this अभी syllabus I think has changed. I'm not up to date with what all things have changed prelims mains में WBCS का, but during 2019 and 20 I think 200 questions रहते हैं, तीन तीन घंटा मिलता है, whereas UPSC में 100 questions रहते हैं and 2 घंटा रहता है। WBCS में आपका इंग्लिश से questions हुआ, सी एंड न्यूमेरिकल abilities questions भी रहता है, तो दो एंड whereas GS पेपर 1 जो UPSC का prelims में रहता है उस पे नहीं रहता। So those were the differences that I found. And WBCS में I find कि more fact oriented questions रहते हैं, whereas UPSC में more मतलब थोड़ा reasoning and वैसे करके मतलब थोड़ा logical application of facts लगाना पड़ता है. So those were the differences I found. But I couldn't clear both the prelims during WBCS. और एक चीज है, जो अब जो पैटर्न के बारे में बोल रहे थे, ये 2019-20 में अभी जो पैटर्न है वही है, हालांकि सामने अच्छा, चेंज होने जाने फाइनल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन चेंज होने वाला अच्छा, है शायद, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ, यूपीएससी के थोड़ा नजदीक जा रहा है ये जो पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, मतलब पहले क्या था, यूपी बीसीएस में जो एमसीक्यू पैटर्न था मेन में भी, तो ये अच्छा, डिस्क्रिप्टिव शायद होने वाला है। और सामने जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लैंग्वेज पेपर्स हैं, ऐसे पेपर एडेड होने वाला है। हाँ, और एक चीज है, वो कल्चर वाला जो पार्ट है वो हम भूल गए डिस्कस करना। कल्चर वाला पार्ट जो इंडियन कल्चर है, वो वेस्ट बंगाल में भी शायद डब्ल्यूबीसीएस में भी अच्छा, आएगा बाद में। तो इसको क्या आप कैसे किया तैयारी किए थे, कल्चर का जो पार्ट है वेस्ट बंगाल एंड इंडिया का? अच्छा। There is a very good book by Nitin Singhania sir, art and culture पे based. I followed that book for art and culture, and also for NCRTs जो ancient and medieval रहता है उसी से cover हो जाता है. So these two books, NCRTs plus standard book में Nitin Singhania sir's book on I think Indian art and culture नाम से है. So these were my sources. हाँ, नहीं, अब मैं आपसे ये 30-40 मिनट्स, मतलब बहुत काफी टाइम हो गया डिस्कशन करते हुए। मुझे एक चीज लग रहा है कि आपका जो सोर्सेस है बहुत लिमिटेड था, उसको ही आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, लेकिन है ना, यही तो बात है मुझे हाँ, लग रहा है। वही sources limited, लेकिन जितना भी पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा. That was my strategy. अगर ये सोर्स से क्वेश्चन सारे कवर नहीं होता है, शायद होगा भी नहीं, मुझे लग रहा है कि एक किताब से शायद पूरा नहीं होगा, लेकिन हो ही सकता है 80-90% हो ही जाता है। तो कितना आपको आपको क्या लगता है, कितना परसेंटेज कवर होता है ये सब लिमिटेड रिसोर्स? मान लीजिए एक किताब आप पढ़े हैं, मान लीजिए कि लक्ष्मीकांत का पॉलिटी आप पढ़े हैं, उसमें कितना परसेंट कवर होता है क्वेश्चन? देखिए ये बोलना काफी डिफिकल्ट रहेगा कि कितना परसेंट कवर रहता है, ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। जैसे इस साल का जो प्रीलिम्स का पेपर है, यू कैन से कि काफी पुअर परसेंटेज रहा होगा कवर करने का। हो सकता है कि उससे पिछले साल काफी अच्छा परसेंटेज रहा। सो गिविंग एनी स्पेसिफिक नंबर वुड नॉट डू जस्टिस टू द क्वेश्चन एट द मोमेंट। नहीं, मैं मेरा हिसाब से मान लीजिए, अगर वो उतना कवर नहीं करता है, फिर तो दूसरा जो गैप रह गया उसको तो कवर करने के लिए कि फिर भी दूसरा कोई किताब उठाना चाहिए, मतलब इसी हिसाब से मैं बोलना चाह रहा था। देखिए अगर कोई कैंडिडेट के पास में टाइम एनर्जी बच रहा है तो ही कैन डेफिनेटली पिक अप अदर बुक्स एज वेल, बट फॉर मी आई डिडंट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम एंड एनर्जी दैट मच, सो आई केप्ट माय सोर्सेज लिमिटेड एंड डेवलप द स्किल ऑफ इंटेलिजेंट गेस वर्क। बेसिकली आपको यू नीड टू जस्ट क्लियर कट ऑफ, दैट्स द ओनली मोटिव बिहाइंड प्रीलिम्स पेपर। तो जितना जैसे हो सके दैट्स द बेस्ट थिंग टू परस्यू। मेन में भी जीएस पेपर में भी जो सारे हैं 1 2 3 जो भी है, तो उसमें हाँ, भी वही स्ट्रेटेजी है, मतलब जो किताब है उसको ही बार बार पढ़ो, उसमें से जितना आएगा वही हम मतलब लिखना है। उतना ही लिखना। एंड फिर आप जब कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होता है वो पढ़ते पढ़ते उसको एक ब्रीफ आइडिया हो ही जाते कि ये क्या चीज से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है। ऑफ कोर्स देयर वुड बी 1 2 क्वेश्चंस इन ईच पेपर जिस जो एकदम ही आउट ऑफ लीग आए क्वेश्चंस वो सब। एंड इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, देयर इज अ गारंटी दैट अदर पीपल विल आल्सो फाइंड दैट क्वेश्चन डिफिकल्ट ओनली। तो ये चीज एक होता है, यू नीड टू सी ओवरऑल मतलब कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ अदर क्वेश्चन, अदर कैंडिडेट्स आल्सो, कि उनको भी अगर डिफिकल्ट लगे सो इट्स फाइन कि सबको डिफिकल्ट लग रहा है।
और एक चीज़ है, कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ और लिखना नहीं आता है, पूरा लिख नहीं पाऊँगा, उस टाइम में कुछ ना कुछ क्या लिखने से कुछ मार्क्स मिलता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जानो तो ठीक है लिखो, नहीं नहीं जानो तो नहीं लिखो, वरना ऐसा कुछ है? देखिए व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अदर मेंस कैंडिडेट्स में, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हुआ अदर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल पे, तो लोगों को एक हाई मोटा मोटी लाइक यू कैन से कि एक अंदाजा हो जाता है क्वेश्चंस का। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं हुए एंड मतलब एकदम बकवास लिख करके आएगा, सो द जो पेपर चेकर है ही माइट गेट एंग्री एंड देन वो बाकी जो सब्सिक्वेंट आंसर्स होगा उसमें ही कैन टेक आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड गिव यू पुअर मार्क्स। तो ऐसा ब्लंडर नहीं करना है, जस्ट राइट समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द टॉपिक एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आई वुड से। अच्छा, और एक चीज़ का बता रहे थे, वो है डायग्राम, पेपर 1 में डायग्राम के बारे में बता रहे थे। तो डायग्राम क्या मतलब थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन अगर करें तो डायग्राम कैसे बनाएँ? पूरा क्या हर एक लगभग क्वेश्चन्स का बनाना चाहिए, जिसमें ज़रूरत है उसमें तो बनाएँ ही, लेकिन जो जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें भी अगर डायग्राम एक दे दे छोटा-सा, उससे बढ़िया होगा क्या? क्या अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें तो? ठीक है, इफ वी अगर हम लोग जो पेपर चेक करके साइकोलॉजी पे जाए, यू अगर आप उनके पोजीशन पे जाए, यू हैव टू चेक क्वेश्चंस डे इन डे आउट, मतलब एंड यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक द पेपर एंटरटेनिंग फॉर देम, कि उनको भी एक ब्रेक मिले। सो दैट इज व्हाई यू पुट डायग्राम्स टू डिफरेंशिएट एंड दे विल आल्सो गेट इम्प्रेस्ड टू सी पेपर एंड लाइक उनका भी जल्दी जल्दी करेक्शन हो, सो दे विल फील हैप्पी एंड गिव यू गुड मार्क्स। सो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, इसीलिए डायग्राम्स बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई स्टूपिड सा डायग्राम बनाना, कुछ आउट मतलब कुछ ऐसी फालतू का कुछ भी डायग्राम बना देना, दैट डजंट मेक सेंस फॉर दिस एग्जाम। कुछ भी रिलेटेड टू क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे अगर रिलेटेड टू, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आता है रबर ग्रोइंग एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, तो यू कैन जस्ट हाईलाइट दोस एरियाज विद them, make a rough diagram of the world map and highlight the areas where rubber is grown, so that will fetch you brownie points from the paper checker। तो बस ये सभी और ऑब्जेक्टिव रहता है। यस, 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 हम समझ गए, लेकिन जो है कि मान लीजिए अगर कितना परफेक्ट होना चाहिए, है ना? मैप जैसे मान लीजिए कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है ही नहीं, लेकिन मैप बनाना भी उतना ठीक तरीके से आता नहीं है, लेकिन ये रबर प्लांटेशन के बारे में कोई एक मैप ड्रॉ किया, उतना परफेक्ट नहीं हुआ, हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है अच्छा मार्क्स खींचने की वजह से मार्क्स कट गया, है ना? देखिए यही बात होती है। जैसे मेरे साथ में हुआ था, आई एम नॉट अ वेरी गुड, आई कैन नॉट मेक गुड मैप्स बट आई प्रैक्टिस बिफोर हैंड एंड तो एक रफली एक मोटा मोटी लाइक विद इन 1 minute यू नीड टू मेक दैट डायग्राम, एक तो जस्ट मे गेट अ गुड हैंड एट ड्राइंग मैप्स बिफोर हैंड बिफोर द एग्जामिनेशन, तो हो बन जाना चाहिए वैसा कुछ, मतलब एकदम पिन पॉइंट करके नहीं बना, बट एक मोटा मोटी रफ एक डायग्राम बना लो, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको शायद करना चाहिए कि नहीं, आप तो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और यहाँ पे एक बंदा भी लिखा भी है नॉर्थ बंगाल से काफ़ी सारा यूपीएससी का क्लियर हो रहा है, सभी ठीक ही है। वेस्ट बंगाल से आपको क्या लगता है, क्या अभी इतना वो नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं मिलता है वेस्ट बंगाल से? ये क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? आई कैन नॉट एनालाइज कारण ये सब, बट क्योंकि दैट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, बट लाइक इफ यू सी फ्रॉम पास्ट 2-3 years वी आर सीइंग कि काफी इंक्रीजिंग ट्रेंड में निकल रहे हैं जी, जी। कैंडिडेट्स। इस साल भी आई थिंक 7 या 9 7 या 9 लोगों ने किया, सो दैट ट्रेंड इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर एंड दैट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। तो इन द कमिंग डेज विल बी सीइंग डबल डिजिट्स ट्रिपल डिजिट्स में यस, कैंडिडेट्स निकले। यस, 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 वी सो आर होपिंग टू वी सी दैट। yes, so हुँ। we all are very positive and hopeful कि more and more candidates will be coming out from our state। एंड ओवरऑल यूपीएससी में ये रीजनल लैंग्वेज का क्या मतलब परसेंटेज, अगर कोई आपका कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? रीजनल लैंग्वेज में क्वालिफाई करना बेटर है, जैसे बंगाली लैंग्वेज का कोई मदर टंग है किसी का, तो बंगाली में एग्जाम देना सही रहेगा या इंग्लिश में देना सही? कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ है आपके पास जानकारी में? देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है इंग्लिश एंड हिंदी में रहता है, सो वी कैन स्टेम आउट दैट। कमिंग टू मेंस क्वेश्चंस आर रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड बंगाली इज वन ऑफ द क्लास क्वालिफाइंग पेपर। हाँ, पेपर 2 जो है उस पे यू कैन हैव लाइक आई हैड हिंदी एज माय क्वालिफाइंग पेपर, बंगाली यू कैन टेक फॉर दोज कैंडिडेट्स एंड बाकी क्वेश्चंस तो राइटिंग इन इंग्लिश इज ओनली बेटर क्योंकि इंग्लिश में स्पीड better रहता है and materials are maximum materials are available in English only, so that is an added advantage with English. Coming to your personality test, I'm not 100% sure, but as far as my knowledge goes we can give our responses in English, in Bengali or other regional language, and then I think there's a translator. I'm not 100% sure about it. I think there's a translator who translates the answers.
So that is there. But of course, I would say giving up examination in English is the best because plentiful materials are available. Your speed increases with English. So that is the competitive advantage that you get. तो काफ़ी टाइम मतलब 40-45 मिनट्स होने लगा आप बोल रहे हैं यूपीएससी के बारे में काफ़ी मोटिवेट भी कर रहे हैं और सारे जो एक देख रहे हैं ये प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि मोटिवेटेड फील करेगा ताकि अगले साल एग्ज़ाम दें और पास भी करें। तो अभी एग्ज़ाम के मतलब ये प्रोग्राम का मतलब आखिर में आ गए हम लोग। तो ब्रीफ में आप तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में बहुत एनालिटिकली डिस्कस किए हैं। तो लास्ट में हम चाहते हैं कि अगर 1-2 मिनट में अगर पूरा एक जीस्ट या एक एडवाइस टाइप का बता दें कि फाइनल एडवाइस आपका क्या रहेगा, तो उसके बाद हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। Okay. So my final advice would be, देखिए, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। जितने भी सोर्सेज है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से कॉन्स्टेंटली बार बार रिविजन करके अपने फिंगर टिप्स पे ले आओ। नंबर वन। सेकंड, अगर आपको फेलियर्स आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू गेट क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट पे, हार मत मानो। कंटिन्यूअसली मतलब अपने वर्क अपॉन की व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट, उस पे वर्क अपॉन करके इम्प्रूव, ट्राई इम्प्रूविंग इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये दो मेरा समरी रहेगा, टू बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट एंड होपफुल फॉर बीइंग एबल टू क्लियर द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर खेमानी। आपका बिजी टाइम से टाइम निकाल के वेस्ट बंगाल का जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप बोले हैं, आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम अगर चाहे मतलब आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा शायद, अगर किसी ने कुछ पूछा तो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, अगर दो एक श्योर लाइन श्योर। आप आंसर करेंगे, ठीक है ना? यस, श्योर श्योर, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अब सो आने मच के लिए एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।